નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે પેલો સંવાદ સાંભળ્યો હશે, તારીખ पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती ही जाती है। કિસાન આંદોલનમાં આજે બીજી બેઠક પણ વળી એક વધારાની તારીખ નાખીને કોઈ નિર્ણય વગર પૂરી થઈ। કિસાનો એમની માંગ પર મક્કમ છે। બેઠક દરમિયાન એમના નેતાઓ મંત્રણા કરતા હતા ત્યારે પણ પ્રદર્શનો ચાલુ હતા અને પ્રદર્શનનો જોમ અને જુસ્સો એવો છે કે 15 થી 20,000 મહિલાઓ જાતે ટ્રેક્ટર ચલાવીને ટ્રોલીમાં બેસીને ટીકર સરહદ પર પહોંચી છે। મહિલા માત્ર પુરુષ સમોવડી જ નહીં, પુરુષથી પણ આંદોલનમાં આગળ નીકળી રહી હોય તેવું ટીકર સરહદે દ્રશ્યો જે જોઈએ આપણે તો આપણને જોવા મળે છે। જગતનો તાત નારાજ છે અને એની નારાજગી હરિયાણા અને પંજાબમાં કંઈક વિશેષતા પ્રગટ થવા માંડી છે। કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં અગાઉના સત્રમાં કિસાન એટલે કે ખેતી સંબંધી, કિસાની કે છે, આપણે ખેતી કહીએ તો ત્યાં કિસાની કે છે, એને સીધી અસર કરે એવા 3 કાયદા પસાર કર્યા। દેશના કિસાનો સરકારે રજૂ કરેલા આ 3 કાયદાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। એમની અત્યારે એક જ માંગ છે, સંસદનું સત્ર બોલાવો અને આ 3 કાયદાઓ પાછા ખેંચો। એથી નીચેની કોઈ વાત અમને ખપતી નથી। એનડીએ સરકારના એક સાથી પક્ષ શિરોમણી અકાલી દળ શરૂઆતથી જ આ બિલનો વિરોધ કરી રહ્યું છે। સાંસદ સુખબીરસિંહ બાદલે કહ્યું કે અમે આ બિલનો વિરોધ કરીએ છીએ જેની અસર 20 લાખ ખેડૂતો પર પડશે। આઝાદી પછી દરેક રાજ્યોએ તેની યોજના બનાવી। પંજાબ ગ્રેનરી ઓફ ઇન્ડિયા કહેવાય છે। પંજાબ સરકારે કૃષિ ક્ષેત્રે છેલ્લા 50 વર્ષથી ઘણી વસ્તુઓ કરી છે। પંજાબના ખેડૂતો ખેતીને પોતાનું બાળક માને છે। પંજાબ દેશના લોકો માટે તેના પાણીનું બલિદાન આપી રહ્યું છે, કારણ કે ઘઉં ઉત્પન્ન કરવા માટે કે અન્ય ધાન ઉત્પન્ન કરવા માટે પાણી જોઈએ। એક જમાનો હતો દર્શક મિત્રો, જ્યારે પહેલી પંચવર્ષીય યોજના લખાઈ ત્યારે આપણે 5 કરોડ ટન અનાજ પેદા કરતા હતા। પીએલ 480 ના ઘઉં ભીખ માગીને ઓસ્ટ્રેલિયા અને અમેરિકાથી લાવતા હતા। ઓસ્ટ્રેલિયાની મોંમાં પણ ન પેસે, જોવી પણ ન ગમે એવી માઇલો જુવાર આપણે રેશનિંગની દુકાનોથી મેળવીને દળાવીને એના ઘઉં સાથે ભેગા કરીને કાં તો એકલા રોટલા કરીને પેટનો ખાડો પૂરતા હતા। આ દેશને કેર નામની મિલ્ક સંસ્થા દૂધનો પાવડર ભેટ આપતી હતી। આજે આપણે 5 કરોડથી આગળ વધીને 30 કરોડ ટન અનાજ પેદા કરીએ છીએ। 34 કરોડ દેવી દેવતાઓના 134 કરોડ દેવી દેવતાઓ થયા છે। પણ આજે આપણે અનાજ માટે ક્યાંય ભીખ માંગવા નથી જવું પડતું। ફળ અને શાકભાજીના ઉત્પાદનમાં આપણે વિશ્વમાં બીજા નંબરે છીએ। દૂધના ઉત્પાદનમાં આપણે વિશ્વમાં પહેલા નંબરે છીએ અને સામાન્ય ભારતીય દુનિયા સામે માથું ઊંચું રાખીને ફરી શકતો હોય તો એનો સંપૂર્ણ યશ આપણા કિસાનને જાય છે। લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ સૂત્ર આપ્યું, જય જવાન જય કિસાન, પછી એમાં જય વિજ્ઞાન જોડાયું। પણ આ જય જવાન અને જય કિસાન એની કુરબાની અને જય વિજ્ઞાનનો મગજ એ 3 ભેગા થઈને આ દેશની પ્રગતિમાં અત્યંત મૂલ્યવાન ફાળો આપ્યો છે। આ દેશનો કિસાન જો ના હોત તો આપણે પરદેશથી અનાજ આયાત કરવું પડ્યું હોત। એ આયાત કરવા માટેના પૈસાની વાત જવા દઈએ તો પણ જ્યાં જ્યાં અન્ન સ્વાવલંબન નથી, એ પછી ચાડ હોય, નાઇગર હોય, દુનિયાના અન્ય કોઈ દેશ હોય, ત્યાં ભૂખમરો ભયંકર રીતે વ્યાપક છે અને એ ભૂખમરાના માટે અનાજ આપવાને બહાને
અનેક પ્રકારના વિઘાતક દળો એ દેશોમાં ઘૂસ્યા છે. આતંકવાદથી માંડીને આંતરવિગ્રહ સુધીની સમસ્યાઓ એ દેશોને આજે કોરી ખાઈ રહી છે. એ ભારતને જો ન કોરી ખાઈ રહી હોય તો એના માટે સલામ કરવી જોઈએ આપણા કૃષકને, આપણા કિસાનને, આપણા ખેડૂતને, કે એણે આપણા પેટનો ભૂખનો ખાડો, અને ભૂખથી મોટી મજબૂરી બીજી કોઈ નથી હોતી. રોટી, કપડા ઓર મકાન, પાયાની જરૂરિયાત જે રોટી છે એ રોટી પૂરી પાડનાર કિસાન આજે ક્યાંક જગતનો તાત આજે વિફર્યો છે. અને વિફર્યો છે એના કારણમાં 3 કૃષિ બિલો છે. અગાઉ આની આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ, પણ એ રોષના ભાગરૂપે પંજાબના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પ્રકાશસિંહ બાદલે વિરોધના પ્રતીક રૂપે પદ્મ વિભૂષણ એવોર્ડ પરત કર્યો છે. સાંસદ ઢીંડસાએ પણ પદ્મ સન્માન પરત કર્યું છે. આ વાત વચ્ચે આપણે જોઈએ કે શું વાંધો છે. તો આ 3 બિલ છે. ધી ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસ એન્ડ ટ્રેડ કોમર્સ બિલ, એ બિલ હેઠળ સરકારની યોજના છે પાક ઉત્પાદનને લઈને એક તંત્ર વિકસિત થાય, જે ખેડૂત જ્યાં ઈચ્છે તે જગ્યાએ પોતાનો પાક વેચી શકે, માત્ર એપીએમસી થકી જ વેચવું એવું એના માટે મજબૂરી ના રહે, અને જેના દ્વારા ખેડૂતો પોતાના પાકનો સોદો ફક્ત પોતાના રાજ્યમાં જ નહીં પરંતુ બીજા રાજ્યના લાયસન્સ વેપારીઓ સાથે પણ કરી શકે. વિરોધીઓને એટલે કે કિસાનને બીક છે કે આ કરવાથી જે મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસનું સરકારની જવાબદારી છે એ ખતમ થઈ જશે, અને પછી બજારમાં તો જેના હાથમાં લાઠી એની ભેંસ, જેની પાસે પૈસા એ પોતાની વાત મનાવશે, ખેડૂત પાયમાલ થશે. બીજું બિલ છે, બીજો કાયદો છે ધી ફાર્મર્સ એગ્રીમેન્ટ ઓફ પ્રાઇસ એશ્યોરન્સ એન્ડ ફાર્મ સર્વિસીસ બિલ. એ એવું કે છે કે આનાથી મોટો લાભ થશે. ખેડૂતોને પોતાના ઉત્પાદનોના માર્કેટિંગ પર ખર્ચ નહીં થાય, દલાલ ખતમ થશે. પંજાબમાં આડતિયા પ્રથા છે જેની બહુ મોટી પકડ છે આ મંડી અને વેપાર પર. સરકારની કોશિશ છે કે જે પણ એગ્રી બિઝનેસ કંપનીઓ છે, હોલસેલર્સ, એક્સપોર્ટર્સ અને રિટેલર્સ છે, ખેડૂતો તેમની સાથે પોતે એગ્રીમેન્ટ કરીને પરસ્પર કિંમતો નક્કી કરશે અને પાક વેચશે. ખેડૂતોને પાકનો યોગ્ય ભાવ મળશે. વિવાદ થશે તો સમય મર્યાદામાં તેના ઉકેલની પ્રભાવી વ્યવસ્થા હશે. બોનસ કે પ્રીમિયમની જોગવાઈ હશે. હવે દર્શક મિત્રો, ધારો કે વિવાદ થયો અને કોઈ પણ તમે એગ્રીમેન્ટ કરો એમાં વિવાદ થવાની શક્યતાઓ નકારી શકાય નહીં, તો ખેડૂત 5 વીઘા કે 10 વીઘા, 5 વીઘા 10 વીઘાવાળા ખેડૂતો ઘણા ઓછા રહ્યા છે. હવે તો સરેરાશ માથાદીઠ જમીન આપણે ત્યાં 1 એકરથી નીચે છે ખેડૂત પાસે. ત્યારે એ પેલી બહુરાષ્ટ્રીય કંપની હોય કે આપણા દેશના જેને માંધાતાઓ કહી શકાય એવા મોટા કોર્પોરેટ ગૃહો હોય, એની સામે લડવા જાય, વિવાદનું મિકેનિઝમ એને પહોંચવા દે ખરું? એમની બીક આ છે કે એમાં ખેડૂતને નહીં મજા આવે. ત્રીજો કાયદો છે ધ એસેન્શિયલ કોમોડિટીઝ એમેન્ડમેન્ટ બિલ 2020. એમાં સરકાર સામાન્ય અવસ્થામાં જે વસ્તુઓ પહેલા સંગ્રહ નહોતી કરવા દેતી, જેની એક સીલિંગ હતી, અનાજ, દાળ, ખાદ્ય તેલો, ડુંગળી, બટાકા, આને આ બધી જરૂરી ચીજ વસ્તુઓમાંથી હટાવી દેવાયા છે. હવે કોઈ પણ રોકટોક વગર કોઈ પણ વેપારી સંગ્રહ કરી શકશે. ખેડૂતને બીક છે કે આ અધિનિયમ કાયદો બને તેના પર એટલા માટે આપત્તિ વ્યક્ત કરાઈ રહી છે કે તેનાથી ભાવોમાં અસ્થિરતા આવશે, ફૂડ સિક્યોરિટી સંપૂર્ણ રીતે ખતમ થઈ જશે. રાજ્યોને એ પણ ખબર નહીં પડે કે રાજ્યમાં કઈ વસ્તુનો કેટલો સ્ટોક છે, એટલે લશ્કર ક્યાં લડે છે એની પણ રાજ્યને ખબર નહીં હોય, એના ગોડાઉનમાં કોની પાસે કેટલો સ્ટોક પડ્યો છે એ પણ ખબર નહીં હોય, અને દેશને પણ ખબર નહીં હોય કે ડુંગળીની આજે અછત ઊભી થઈ છે તો આ દેશમાં ડુંગળીની કયા રાજ્યમાં કેટલું સ્ટોરેજ છે. એટલે આની સામે પણ કિસાનોને વાંધો છે, અને કિસાનોની માંગણી એક જ છે. બહુ લાંબી ટૂંકી એમની વાત નથી. કિસાનો એટલા તો ઉગ્ર છે કે પહેલી બેઠક વખતે ચા પાણીનો વિરામ પડ્યો. સામાન્ય રીતે આતિથ્ય સત્કારની ભાવનાવાળો આ દેશ છે, એટલે એમને આમંત્રણ આપ્યું કે ચાલો ચા આપીએ, પછી આગળ ચર્ચા કરીએ. કિસાનોએ કહ્યું ચા આજે તમારી બિલકુલ નહીં. તમારે જો જલેબી ખાવી હોય ગરમા ગરમ તો અમારા લંગરમાં આવો, અમે ખવડાવીશું તમને. અમારે તમારી સરકારની ચા પણ નથી પીવી.
આ કેટલી હદ સુધી કિસાન નારાજ છે તેનો દાખલો છે અને એ નારાજગી વચ્ચે આગળ શું થશે એની ચર્ચા આજે આપણે કરવી છે। એ ચર્ચા આપણે ત્રણ આપણી પાસે જુદા જુદા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા દિગ્ગજો છે। પ્રોફેસર અનિલ ગુપ્તા આઈઆઈએમ અમદાવાદ અને આઈઆઈટી મુંબઈના વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી છે, ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ માટે કામ કરે છે, ખેડૂતોના મુદ્દાની ઊંડી સમજ ધરાવે છે। સુનિલ ફૌજી કિસાન આંદોલન સાથે સંકળાયેલા છે, એનસીઆરથી ખેડૂત આગેવાન છે। ડોક્ટર હેમંતકુમાર શાહ ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝનના દર્શકો માટે આ નામ નવું નથી, અર્થશાસ્ત્રી છે, શિક્ષણવિદ છે અને કોઈ પણ વિષય હાથમાં લે એના તળ સુધી જવાની એમનામાં એક ખાસ આવડત છે। આંકડાઓ અને વિગતો એમની પાસે ઢગલાબંધ હોય છે અને એને એ તર્કબદ્ધ રીતે વાપરી પણ જાણે છે। फौजी साहब शुरुआत आपसे करें। जोड़ा એટલે કો अच्छा શરૂઆત કરીશું। હજુ સુનિલ ફૌજી આપણાથી જોડાયા નથી, શરૂઆત કરીશું આજે તો પછી ગુપ્તા સાહેબ આપનાથી। આપ આ આંદોલનથી સુપેરે સુવિદિત છો। ભારતમાં અત્યંત મોટા પાયે આપે ભ્રમણ કર્યું છે। કાકા સાહેબ કાલેલકરે એવું કહ્યું છે કે પ્રવાસ જેવો મોટો શિક્ષક કોઈ નથી। આપ તો આઈઆઈએમના પ્રોફેસર છો, શિક્ષક છો અને પછી એટલું બધું આ દેશમાં આપે ભ્રમણ કર્યું છે, એવા વિવિધ વર્ગો સાથે આપ સંપર્કમાં આવ્યા છો કે આપ એ જ્ઞાનની બાબતમાં, ખેતીને, ગ્રામ્ય વ્યવસ્થાને, એન્ટરપ્રિન્યોરશિપને લગતી બાબતમાં આપે એક વિશિષ્ટ જ્ઞાનનો સંપુટ પ્રાપ્ત કર્યો છે। ત્યારે પૂછવું છે कि ये जो आंदोलन चल रहा है अभी उसका कहीं अंत नहीं दिख रहा, शायद बढ़ने के आसार जरूर है। क्या राय है आपकी? ये क्या किसानों की जो मांग है कि तीनों कायदे जो है उसको रद्द कर देने चाहिए, पार्लियामेंट को इसको वापस खींचने चाहिए, क्या सोचते हैं आप, क्या राय है आपकी? एक बात तो स्पष्ट है कि जो किसानों का कहना है कि अगर हमसे पहले बात की होती हमारे आंदोलन के नेताओं से या अलग अलग संगठनों से तो शायद अच्छे कानून बनते, अच्छी बातें आती, ये सब विरोधाभास पैदा शायद नहीं होता। तो प्रजातंत्र में सभी की बात सुनकर कानून बनाने की जो व्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि वो उनका आग्रह बहुत गलत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम पिछली बार जब आए थे तभी हमारी बात सारी सुन ली होती और हमको हमारे साथ चर्चा कर ली होती तो बोले हमको दिल्ली नहीं आना पड़ता। ये भी बात सही है कि मौके थे हमारे पास, सरकार के पास, समाज के पास कि इस चर्चा को समय रहते हुए कर सकते थे और शायद बिना उग्र बनाए हुए उनको और बिना बाकी तत्वों को बीच में डाले हुए ये इसका समाधान शायद कुछ निकल सकता था। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें मुझे लगता है सरकार को ये मान लेना चाहिए कि हमें आपसे पहले बातचीत करनी चाहिए थी, नहीं हो पाई, इसका हमें खेद है। आगे से इस व्यवस्था का, इस तरह की बातचीत का ध्यान रखा जाएगा। तो क्या होता है जब किसान महसूस करेंगे कि भाई सरकार मान रही है कि कुछ कमियां रह गई हैं कानून बनाने की व्यवस्था में, तो उनका रुख नरम होने की संभावना है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि जो आंकड़े हैं वो बड़े स्पष्ट बताते हैं कि लगभग सभी फसलों में जो एमएसपी है उससे बहुत कम कीमत पर किसानों को बाध्य होना पड़ रहा है बेचने के लिए। अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में ही, अभी एक चैनल में दिखा रहे थे वो, कि सितंबर से अक्टूबर यानी पिछले महीने में ही सभी फसलों के दाम जो किसान जो मंडियों में बेच रहे थे वो एमएसपी से काफ़ी कम थे और कुछ किसी फसल में तो आधे थे। तो निश्चय ही 6-7% लोगों को एमएसपी का लाभ इवन पंजाब में मिला है। पंजाब के बाद तो बात ही दूसरी है। तो अगर खाली एमएसपी से समस्या का हल होता तो शायद ये बड़ा आसान है सरकार के लिए मान लेना कि हाँ एमएसपी रहेगा और रहेगा, और वो कह भी रही है सरकार कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। लेकिन खाली एमएसपी से तो समस्या हल नहीं हो रही है। उस एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट हो, सरकार अपनी व्यवस्था जो खाद्य व्यवस्था है उसमें तिलहन दाल और जो मोटे अनाज हैं उनको भी शामिल करे और इनका भी जो खरीदने का काम व्यवस्था है उसको ज़्यादा किसानों तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात एक और बड़े ध्यान देने की बात है कि किसान लोग
किसानों की जो मांगे हैं उसमें उन्होंने कुछ और मांगे भी डालनी चाहिए थी, जैसे मेरा मानना है। अभी हमने पंजाब में भी शोध यात्रा की, जालंधर में, और हरियाणा में की, महेंद्रगढ़ जिले में। मुझे एक खेत ऐसा नहीं मिला जहां पर इन सीटू वैल्यू एडिशन, यानी कि किसान वहीं पर मूल्य वृद्धि कर रहे हों। सब्जियां हैं तो उनको सुखाकर उनका कोई पाउडर बना रहे हों, या उनके कोई उनको व्यवस्थित रूप से पैक करके बेचने की कोशिश कर रहे हों, फलों का कुछ बना रहे हों, गेहूं का प्रोसेस करके आटा बना रहे हों, या कुछ और चीज बना रहे हो, ऐसी कोई व्यवस्था मिली नहीं देखने को। तो मतलब क्या है कि किसान अगर खाली कच्चा माल बेचेगा और औद्योगिकरण, उद्योग में सारी जो मूल्य वृद्धि है वो शहरों में होगी, तो बाकी जो वैल्यू चेन का हिस्सा है गांव में कम रहेगा, शहरों में ज्यादा रहेगा, उनकी समस्या दूरगामी तरीके से हल नहीं होने वाली। तो एक तो मांग उनको कहनी चाहिए थी कि जो फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग है, इसका प्रसार कहीं ज्यादा हरियाणा पंजाब में जरूरत थी, नहीं हुआ। उनको सिर्फ एक अनाज उगाने वाला प्रदेश बना दिया गया। दूसरी बात एक और जो समझने वाली है कि जब देश को अनाज की जरूरत थी तो देश ने व्हीट पैडी रोटेशन, यानी कि गेहूं और धान की जो फसल चक्र है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है दूरगामी तरीके से देखा जाए, लेकिन किसानों को प्रोत्साहित किया गया उस फसल चक्र को अपनाने के लिए। किसानों ने अपना लिया, उसका नतीजा ये हुआ कि जो तत्व थे, सूक्ष्म तत्व, वो भी कम हुए, पानी का भी स्तर नीचे गिरता चला गया, उनका खर्चा बढ़ता चला गया। किसान को आमदनी चाहिए, खाली दाम नहीं चाहिए, आमदनी चाहिए। इसका मतलब है खर्चा हमें कम करना चाहिए। खर्चा कम करने के ऊपर कोई भी चर्चा अभी तक किसान आंदोलन की तरफ से या सरकार की तरफ से अभी देखने में नहीं आई है, सुनने में नहीं आई है। तो लगता है कि एक मुद्दा है जिसको सरकार को ही लाना चाहिए सामने, कि किस तरीके से किसानों के खर्चे को कम करने के लिए अच्छी व्यवस्था बनाई जाएगी। तीसरी बात जो किसान तो और मुझे लगता है कि उस बात में भी थोड़ा दम है कि जब बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, और कॉन्ट्रैक्ट का जैसे प्रोफेसर सुखपाल बता रहे थे परसों, हमारे आईएम के प्रोफेसर जो हैं सीएमए के, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है ज्यादातर एक तरफा है। उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो खरीदने वाला है, जो कंपनियां हैं, उनके पक्ष को तो ज्यादा सुरक्षित रखा गया है और किसान के पक्ष को कमजोर रखा गया है। ऐसे करार तो नहीं होने चाहिए, दोनों पक्षों की सुरक्षा होनी चाहिए। किसानों को बात सही है कि एसडीएम की कोर्ट में तो उनकी सुनवाई नहीं होने वाली है, मुझे लगता है सरकार वो बात मान जाएगी और सिविल कोर्ट का प्रावधान हो जाएगा। ऐसा मुझे आज तोमर जी की बात सुनकर आभास हुआ। तो वो सही बात थी, क्योंकि उनको नौकरशाही के अंदर नहीं उलझाना चाहिए। उनको तो जो तरीके हैं, उनके अधिकार जो हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। सरकार ने आज ये भी कहा है कि जो टैक्सेस होंगे वो बाहर जो प्राइवेट मंडी हैं उनमें भी होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में आपने अभी कहा कि जो स्टॉक रखने की सीमा है उसके बारे में सरकार ने छूट दे दी है पूरी। तो उसका एक तरीका, कारण ये था कि कई बार ज्यादा स्टॉक के मार्केट में दाम, जब हम खरीदते हैं तो दाम ज्यादा बढ़ जाते थे, जब किसान से बेच खरीदते हैं तो दाम बहुत कम रहते हैं। ये जो स्प्रेड था, मार्केट स्प्रेड, ये काफी बढ़ जाता था, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को भी दिक्कत होती थी। तो एक आशंका तो है मेरे मन में ये कि अगर हमने पूरी तरह से इसको खुला छोड़ दिया, पूरा कोई भी कितना भी माल अपने पास रखे इसकी आजादी दे देंगे, तो ये तो सही है कि वो खरीदने में स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन वो कब बेचना है और कितना बेचना है उसमें भी स्वतंत्र रहेंगे और बाजार के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जो गरीब वर्ग है उसके ऊपर इसका आड़ असर पड़ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो कानून में परिवर्तन की गुंजाइश है, उसमें होना चाहिए, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं ये भी मान रहा हूं कि जो और मुद्दे हैं खर्चा कम करने के, उनको भी सामने लाना चाहिए, मूल्य वृद्धि के, उनको भी सामने लाना चाहिए। और आगे से हमें तय करना चाहिए कि जो भी कानून हम बनाएंगे, जो पक्ष उसमें शामिल हैं उनकी बात को सुनकर, उनकी बात को समझकर और अलग अलग पक्षों की राय लेकर, खाली एक ही राय सरकार की नौकरशाही की बात ही ना रहे, बाकी पक्षों की बात सुन लिया जाए, तो उससे अच्छे कानून बनेंगे, देश का आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर हम ज़्यादा लोगों को आज़ादी देंगे माल खरीदने के लिए तो उससे कोई नुकसान होगा किसान का। लेकिन ये भी सही है कि कार्टेलाइजेशन वैसे मंडी में होता है, ऐसे बड़े व्यापारी भी कर सकते हैं और बड़े औद्योगिक घराने भी कर सकते हैं। तो जो कार्टेलाइजेशन का तरीका है, यानी कि एक करार आपस में मिलकर और दाम को फिक्स करने की जो पद्धति होती है, जो मंडियों में भी दिखती है, किसानों को सही दाम कई बार नहीं मिल पाता, बताया मैंने कि 6% को ही एमएसपी मिलता है, 6-7% को ही। तो ये जो पद्धति है इसको तोड़ना होगा, किसानों को पूरा उनका वाजिब दाम मिले, इसकी व्यवस्था करनी होगी। उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट नीति अभी समझ में सामने आई नहीं है, मुझे लगता है उसकी जरूरत है। सुनील जी, आपका स्वागत है। गुजरात समाचार के साथ आप जुड़ गए हैं अब,
और हम गुजरातियों के लिए भी एक गौरव की बात है कि आप आंदोलन से जुड़े हैं, किसानों से जुड़े हैं, और आज गुजरात समाचार टीवी के माध्यम से आप गुजरात के किसान और किसानों के प्रति जिन लोगों को भाव है उन सब लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं। तो मैं मेरी व्यक्तिगत तौर पे और गुजरात समाचार टेलीविजन की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपसे सीधा प्रश्न है मेरा कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें कोई तारीख पे तारीख वाली बात अभी लगती है आगे चल रही है, क्या है ये सब? आप चूंकि इनके साथ नजदीक से जुड़े हैं तो हम एक फर्स्ट हैंड अकाउंट जिसको बोलते हैं, प्रथमदर्शी जो आपके पास इसका ज्ञान है, तो इससे हमें अवगत कराएं। जी, बहुत बहुत आभार। दरअसल जो यहाँ पर किसानों का आंदोलन अभी एनसीआर में चल रहा है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के किसान अपने अपने जो मुख्य मार्ग हैं उस पर डटे हुए हैं, और किसानों का जो आंदोलन है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से है, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं है। उनके साथ जो पुलिस का जो व्यवहार है वो सही नहीं है। अभी तक भी सरकार की तरफ से जो डायलॉग की बात रखी गई है या जो उन्होंने वार्ता की जो पेशकश की है उसमें वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं। यदि हम कानून की बात करें तो जिस तरह से सरकार एक जिद दिखा रही है, अपनी एक जिद्दीपना दिखा रही है कि हम कानून को वापस लेंगे ही नहीं, जो सब उनके मन में है, तो ये उनको सोचना पड़ेगा दोबारा इसके बारे में, क्योंकि कानून जो उन्होंने बनाया है वो किसानों के सभी हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया है। यदि हम बात करें एमएसपी की, तो जो एमएसपी है वो पहली बात तो सभी फसलों पे लागू ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो किसानों की जो फसलों का, क्योंकि यहाँ बहुफसली जमीन है हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में, यहाँ से लेकर के पंजाब तक खासकर बहुफसली जमीन है। पहली बात तो ये वैसे ही अधिग्रहण करते जा रहे हैं बहुत ज्यादा जमीन को इंडस्ट्रीज के नाम पर और तमाम जो है बिल्डर्स के नाम पर यहाँ पर जमीन को लेते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान आंदोलनरत हैं, वो अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं, देश को अन्न का संकट ना हो। और अब ऐसी स्थिति में कि उनकी जो अन्न के दाम है वो भी उचित नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से उन्होंने ये बात की कि एक कॉर्पोरेट फार्मिंग वाली स्थिति हो गई कि यदि ये कानून रहेंगे, जो इन्होंने विशेष रूप से इसमें हस्तक्षेप किया है कि जहां किसान अपनी जमीन पर उसको अधिकार मिलना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना सके, वो अगर मान लिया उसके खेत में आलू हो रहा है, आलू पैदा कर रहा है वो, और उसको ये अधिकार मिलेगा खुद स्वयं में कि वो आलू की चिप्स की कोई फैक्ट्री लगा सके, या वो एक कोल्ड स्टोर अपने सभी लोग मिलकर के बना सकते हैं, 2 4 5 गांव के लोग। तो ऐसे अधिकार किसानों को देने की बजाय वो पूंजीपतियों को दे रहे हैं, और उनको जो है एक दबाव बन जाएगा किसान के ऊपर कि भाई वो जो जब कॉर्पोरेट खेती यहाँ पर होगी उसको तो एक बंधुआ मजदूर की तरह से रहना पड़ेगा। जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में जो चंपारण का आंदोलन सभी देशवासियों को पता है, इतिहास में दर्ज है, महात्मा गांधी जी ने उसमें हस्तक्षेप किया था। जो नील की खेती जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कराती थी किसानों से, और उनको बंधुआ मजदूर के तौर पर यूज करती थी, जो थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा उनको मिलता था छमाही में। तो यही स्थिति यहाँ पर हो जाएगी अगर ये कानून रहेगा। तो विशेष रूप से हम कारपोरेट जो फार्मिंग का जो इनका फॉर्मूला है उसका विरोध करते हैं, और ये तत्काल रूप से निरस्त होना चाहिए। दूसरा, जो इन्होंने जहां तक मंडियों की बात कही है कि भाई मंडियों को साइड करने की बात कही है, और वो कह रहे हैं कि हमने एक रास्ता खोल दिया कि किसान यहाँ से लेकर के दिल्ली से केरल तक भी अपना सामान बेच सकता है, अपनी फसल बेच सकता है। लेकिन कैसे ये पॉसिबल होगा? पहली बात, इसका क्या फायदा किसान को होगा, क्योंकि उसके पास तो इतना भाड़े में ही उसका पूरी जो फसल की जो कीमत है वो चली जाएगी। तो ये बहुत उसके लिए कोई ज्यादा अच्छा कानून नहीं है कि वो यहाँ से जाकर के दूसरे किसी स्टेट में बेचने जाएगा। बेटर ये होता कि यहाँ की जो मंडियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए और उसमें एक सरकारी कांटा बनाया जाए कि उसको आसानी से वो जाकर के उसमें बेच सकता है, और एमएसपी जो है उसके लिए कानून आ जाए कि इससे नीचे अगर कोई रेट में अगर उसे खरीदता है तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर किसान बहुत ज्यादा चिंतित है, खासकर दिल्ली एनसीआर और पंजाब तक के, हरियाणा के यहाँ जो किसान है, और इसी तरह से पूरे देश भर के किसान चिंतित है। तो हम लोग इसी में सभी लोग मिलकर के एजिटेशन कर रहे हैं। अभी लोगों को जिस तरह से जागरूकता हुई है, धीरे धीरे बहुत संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं,
तो इससे लग रहा है कि जो इस सरकार का जो जिद है कि भाई हमारा तो लोकसभा में भी बहुमत है और राज्यसभा में भी हमारा लगभग बहुमत हो गया है, तो हम कानून बनाने में बिल्कुल एकदम सक्षम है, हम किसी चीज को आसानी से करा सकेंगे। लेकिन हम चेतावनी देना चाहते हैं, विशेष रूप से आगाह भी करना चाहते हैं सरकार को कि वो अपने इस अहंकार में ना आए, किसानों की बात को, उनके मन की जो पीड़ा है उसको सुने, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने आपको वोट देकर के बनाया है, यदि आप उनके साथ इस तरह से अन्याय करेंगे तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि आपको वो इसी गद्दी से उतार भी देंगे। तो हम बिल्कुल विनम्रता से आगाह करना चाहते हैं सरकार को कि वो इन कानूनों को वापस ले और किसान के हक में उचित मूल्य देने के लिए एक नया कानून पास करे, किसानों की राय से बनाए। धन्यवाद सुनील जी। बात ऐसी लगती है कि पूरा जो मसला है, पूरा मुद्दा है, शायद गुप्ता साहब ने भी यही बात बताई थी कि स्टेक होल्डर्स जो हैं इनको विश्वास में लेके अगर किया गया होता तो यही प्रश्न जो अभी आंदोलन के मुद्दे बने हुए हैं, शायद दोनों ओर से साथ बैठ के शुरुआत में ही इनका हल ढूंढा जा सकता था। वो नहीं हुआ और आज परिस्थिति ये हुई है कि दोनों ओर कहीं न कहीं कुछ गजगरा चल रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक पक्ष मानता है, दूसरा पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। मगर जहां तक किसानों का सवाल है, मैं मानता हूं कि देश का सबसे अगर कोई एक जिसको हृदय बोलते हैं, जिसके बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते, तो ये देश का हृदय है। वो जब तक रोटी हमारे पेट में नहीं जाती हम कुछ कर नहीं सकते। तो किसान के साथ जो भी होना है, किसान ने आज तक इस देश का मस्तक गौरवान्वित रखा है और आज तक हमें भीख मांगने की और देशों से जरूरत नहीं पड़ी है। तो हम किसानों को भी पूरी एक तरह से रिस्पेक्ट से देखते हैं, मान से देखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि इनकी जो बातें हैं वो साथ बैठ के सुलझाई जाएगी। आज आपने बताए वो मुद्दे पे कहीं ना कहीं तकलीफ है। रुकेंगे हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए और उसके बाद हम फिर से चर्चा के लिए जाएंगे हमारे प्रोफेसर हेमंत भाई शाह के पास। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, બ્રેક બાદ આ દેશ માટે, મારા, તમારા અને આપણા માટે અત્યંત અગત્યની અને રસપ્રદ ચર્ચા, જે ખૂબ મોટી ચિંતામાં આજે આપણી સામે આવીને ઊભી છે, આપનું સ્વાગત છે। જઈશું હેમંતભાઈ પાસે। હેમંતભાઈ, આપે સુનિલજીને સાંભળ્યા, પ્રોફેસર અનિલ ગુપ્તા સાહેબને સાંભળ્યા। લાગે છે કે આ જે મુદ્દા છે એમાં અગત્યના મુદ્દાઓમાં એમએસપી છે, કોર્પોરેટ ફાર્મિંગ છે, જેમાં ખેડૂતને પોતે કોર્પોરેટ હાઉસીસની સામે અસમતુલા મહેસૂસ કરશે તે દહેશત છે। એપીએમસીના બદલે દેશમાં ગમે ત્યાં વેચી શકાય તેવી વ્યવસ્થાની વાતનો બિલમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। અને મુખ્ય વાત એ છે, આ ચર્ચામાં સુનિલજીએ પણ કહી, અગાઉ પણ કહેવાય છે, એ છે જે અનિલ ગુપ્તા સાહેબે પણ કહી હતી કે તમે સ્ટેક હોલ્ડર્સ જે લોકોને આનીથી લાગે વળગે છે એની સાથે વાર્તા કરો ને, તકલીફ શું છે। બિલ બનાવતા પહેલા જો સાથે બેઠા હોત તો આજે કોઈ પ્રશ્ન ના થયો હોત। એ વાત મને લાગે છે કે ઘણી વ્યાજબી છે। मारो તમને सीधो प्रश्न है और ये प्रश्न एमएसपी साथ जोड़ाયેલો है। आपको समझ में आए सुनील जी, इसीलिए मैं इसको हिंदी में पूछता हूं इनको कि जो एवरेज साइज है किसान के लिए खेत की, वो 1951 में जो साइज थी कम होती आज करीब औसत 1 एकड़ से कम रही है। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो विजन 2030 है उसके मुताबिक 2030 तक ये औसत जो साइज है फार्म की वो कम होती 3000 स्क्वायर मीटर हो जाएगी। अब जब ये फार्म साइज इतनी कम होती जा रही है
कृषि की जमीन के टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। करीब 45% से ज्यादा जमीन इसकी वजह से कार्ट ट्रैक है, नाला है, बंड है, इसमें वेस्ट जा रही है। तब आपको लगता है हेमंत भाई कि ये जो परिस्थिति है उसमें एमएसपी कितनी आएगी? क्योंकि स्वामीनाथन कमीशन ने तो कहा है कि जितनी आपकी उत्पाद कीमत हो उस पे 50% बढ़ोतरी करके एमएसपी देनी चाहिए। तो ये मुद्दा जो है वो पेच ऐसा फंसने वाला है कि आने वाले समय में भी मैं नहीं मानता इसका कोई हल निकल के सामने आए। क्या राय है आपकी? इकोनॉमिस्ट की हैसियत से मैं आपको पूछ रहा हूं। આપે જે સવાલ પૂછ્યો છે એના સંદર્ભમાં હું કહું કે MS સ્વામીનાથન સમિતિએ જે ફોર્મ્યુલા આપી અને ખર્ચના 50% પણ વધારે એટલે 150% વધારે ભાવ લઘુત્તમ ટેકાના હોવા જોઈએ એવી જે ભલામણ કરી એ ભલામણનો સંપૂર્ણપણે સ્વીકાર ભારત સરકારે કર્યો નથી અને એને તો 2015માં સુપ્રીમ કોર્ટમાં એવું કહ્યું છે કે અમે આ ફોર્મ્યુલા સ્વીકારી શકીએ એમ નથી। એટલે આ એનું એક જાહેર વલણ છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। પણ અગત્યનો મુદ્દો એ છે કે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવની જે આખી વ્યવસ્થા છે એ કોઈ કાનૂની વ્યવસ્થા નથી, એ તો એક સરકારી કાર્યક્રમ છે ખેડૂતોને વધારે ભાવ આપવા માટેનો। એટલે એ આ કાયદામાં નથી, પણ એનો અર્થ એવો પણ નથી કે એ આખી જે વ્યવસ્થા છે એ દૂર થઈ જવાની છે। મુદ્દો એ છે કે જ્યાં સુધી સરકાર 2 રૂપિયા કિલો ઘઉં 3 રૂપિયા કિલો ચોખા ગરીબોને સસ્તું અનાજ પૂરું પાડવા માટેની વ્યવસ્થા ધરાવે છે એ ચાલુ રાખે છે અને ચાલુ રહેવાની છે, કારણ કે એને માટેનો અન્ન સલામતીનો કાયદો છે 2013નો। ત્યાં સુધી સરકારે ખેડૂતો પાસેથી લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ઘઉં અને ચોખા તો ખરીદવા જ પડશે એમ ચોક્કસપણે લાગે છે। એટલે અગત્યનો મુદ્દો એ છે કે જે ડર અત્યારે ખેડૂતોના મનમાં છે એ મને લાગે છે કે એને વિશેની સરકારે ચોખવટ કરવી જોઈએ। હું એ વાત સાથે સંમત છું કે સરકારે જે બધા હિતધારકો છે, સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે, એ બધાની સાથે ચર્ચા કરીને આ કાયદા લાવ્યા હોત તો વધારે સારું થાત। ખેડૂતો પ્રત્યેનું જે ભારત સરકારનું પોલીસનું વર્તન છે એ પણ લોકશાહીને છાજે એવું નથી અને લોકડાઉન દરમિયાન કશી જાહેર ચર્ચા વિના આ કાયદા લાવી દેવાયા અને રાજ્યસભામાં તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કેવી રીતે મૌખિક મતદાનથી એ પાસર કરી દેવાયા। એ મુદ્દો પણ મને લાગે છે કે બહુ ગંભીર છે અને એ આખું એક સરમુખત્યારી વલણ બતાવે છે। એટલે આ સરકાર તો લોકો સાથે ચર્ચા કરે તો જ નવાઈ થાય એવું આપણે કહી શકીએ એમ છીએ। 5મી જૂને આ 3 વટહુકમ આવે છે અને સંસદ એને પસાર કરે તે પહેલા 22મી જુલાઈએ આપણા વડાપ્રધાન યુએસ ઇન્ડિયા બિઝનેસ કાઉન્સિલની એક પરિષદમાં અમેરિકન કંપનીઓને ખેતી ક્ષેત્રે મૂડીરોકાણ કરવા માટે નિમંત્રણ આપે છે। હવે સવાલ એવો ઉભો થાય છે કે આ કાયદા ખરેખર કોને માટે કરવામાં આવ્યા છે? એટલે ખેડૂતો દેવાદાર છે, ખેતીમાં એ મૂડીરોકાણ કરી શકતા નથી, એમની પાસે પૈસા નથી અને ઉત્પાદનના એમને સારા ભાવ મળતા નથી। આ મોટી સમસ્યાઓ છે। એ સમસ્યાઓના સંદર્ભમાં આપણે આ કાયદાઓને જોવાની આવશ્યકતા છે। આપે કહ્યું એમ કે બહુ જ ઓછી જમીન ધરાવતા જે સીમાંત અને નાના ખેડૂતો છે એ 90% ખેતી તો આપણી એમાં જ થાય છે અને એ જ બધા શાકભાજી, અનાજ, ફળ, ફળાદી વગેરે પકવે છે। તો એમની જે સરેરાશ આવક છે એ સરેરાશ આવક એ 1,71,000 ખેડૂત આખા પરિવારની 1,07,000 થી વધારે નથી। તો આજે 1,07,000ની આવક બમણી કરવાની છે એવી જે આપણી સરકારની નેમ છે એ શું આ કાયદાથી થઈ શકશે? ઘણી મને લાગે છે કે એને વિશે શંકા છે। પણ તેમ છતાં એક બાબત આપણે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ અને તે એ છે કે ખેડૂતોને ભાવ નથી મળતા, રેમ્યુનરેટિવ પ્રાઇસીસ વળતરજન્ય ભાવ નથી મળતા એવી ફરિયાદ બધા રાજ્યોમાં રહી છે અને લાંબા સમયથી એ રહી છે। સવાલ એ છે કે આ ભાવ નથી મળતા એનું કારણ શું છે? તો મોટે ભાગે એ કારણ ત્યાં જ આવીને ઊભું રહે છે કે એપીએમસીના જે વેપારીઓ છે એ પૂરતા ભાવ આપતા નથી અને એમનો એક પ્રકારનો ઈજારો થાય છે। માલ ખરીદનારા લોકો, કંપનીઓ, વેપારીઓ
અને એપીએમસીના વેપારીઓ, એ બધાની એક સંતલસ થાય છે, જેને અર્થશાસ્ત્રમાં અલ્પહસ્તક ઇજારો ઓલિગોપોલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એવા એક પ્રકારની ઓલિગોપોલી ઊભી થઈ જાય છે અને પછી ખેડૂતોને ભાવ નથી મળતા. હવે હકીકત એવી છે કે 19 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો અત્યારે એવા છે કે જ્યાં ખેડૂતોની ખેત પેદાશો કોઈ પણ ખરીદી શકે એવા પ્રકારના નિયમો છે જ અત્યારે હાલ છે. એટલું જ નહીં, 18 રાજ્યો એવા છે કે જ્યાં ખાનગી બજારોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. 20 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો એવા છે કે જ્યાં કરારી ખેતી થાય છે અને 300 જેટલી કંપનીઓ જુદા જુદા રાજ્યોમાં ખેડૂતો સાથે કરાર કરીને ખેતી કરી રહી છે. તો આ પ્રકારના સંજોગોમાં જ્યારે કેન્દ્ર સરકાર આ કાયદા લાવે છે ત્યારે વિરોધ થાય છે. એનું એક કારણ એ છે કે કેન્દ્ર સરકારની દાનત ઉપર ખેડૂતોને શંકા જાય છે અને મને લાગે છે કે આ શંકાઓ દૂર કરવાની વધારે આવશ્યકતા છે. અને બીજો અગત્યનો મુદ્દો એ છે કે જે MS સ્વામીનાથન સમિતિએ જે રિપોર્ટ આપ્યો અને એમાં જે ભલામણ કરી એ મુજબ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ ઉભા થાય અને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ બધાને મળે એવા પ્રકારની વ્યવસ્થા ઊભી થાય. આપણે અત્યારે એવું ધારી લીધું છે 1991 પછી જે નવી આર્થિક નીતિ આવી એ પછી કે હવે બધું ઉદારીકરણ કરી નાખો અને સરકાર કશું કરી શકશે જ નહીં, બધું ખાનગી કંપનીઓ જ કરશે અને એમાંય ઘણું બધું તો માત્ર વિદેશી કંપનીઓ જ કરશે. એવી જે આપણી આખી ધારણા ઊભી થઈ છે, મને લાગે છે કે આ ધારણા ઘણી ખોટી છે. સરકારે ભૂતકાળમાં ઘણા કામો કર્યા છે. ત્રીજી પંચવર્ષીય યોજનામાં જે ગ્રીન રિવોલ્યુશનની હરિયાળી ક્રાંતિની આપણે શરૂઆત કરી એમાં સરકાર આપણે સફળ થયા. એમાં ઘણો મહત્વનો ફાળો સરકારી કર્મચારીઓનો, સરકારી અધિકારીઓનો અને સરકારની નીતિઓનો રહ્યો છે. એ વખતે વિદેશી કંપનીઓ નહોતી. તો આપણે હરિયાળી ક્રાંતિમાં ઘઉં અને ચોખાના ઉત્પાદનની બાબતમાં સ્વાવલંબી થયા. એ આ દેશના ખેડૂતોએ અને સરકારી કર્મચારીઓ, અધિકારીઓની મહેનતને પરિણામે થયા છીએ. આ હકીકત આપણે ભૂલવી ના જોઈએ. અને મને એટલા માટે એમ લાગે છે કે આ જે આખી અત્યારે એક પ્રકારની અસમંજસતાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે, એ અસમંજસતાની પરિસ્થિતિમાંથી આપણે બહાર આવવું જોઈએ. એ એમ કહેવામાં આવે છે કે નાના ખેડૂતો એ કંપનીઓની દયા ઉપર જીવતા થઈ જશે, પણ અત્યારે નાના ખેડૂતો એ એપીએમસીના વેપારીઓની દયા ઉપર જ જીવે છે. સવાલ એ છે કે નાના મોટા ખેડૂતોને જો તમે એમનો ખેત પેદાશ સંઘરવા માટેની વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરો તો આ વ્યવસ્થાઓમાં એમને ભાગીદાર બનાવો અને એ ભાગીદાર બને અને જાતે આ બધી વ્યવસ્થાઓ કરે અને વેચાણ માટેના ભાવ એ જાતે નક્કી કરી શકે એવા પ્રકારની વ્યવસ્થા ઊભી થાય તો મને લાગે છે કે વધારે સારી રીતે આપણે ખેતીનું સંચાલન કરી શકીશું. जी मैं रुक करता हूं आपकी और सुनील जी. 2-3 मुद्दे हैं जो अब तक की चर्चा में से उभर कर सामने आए हैं. एक तो जो खेत की औसत जो एरिया है कम होती जा रही है और उसकी वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल जिसको बोलते हैं वो आप कितनी भी एमएसपी रखो, जब 90% से ज्यादा किसान सीमांत और अति सूक्ष्म किसान है तो आप कितनी उनको सपोर्ट प्राइस दोगे. तो ये मुद्दा भी उस ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है. इसका कुछ हल आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ढूंढना होगा. तो ये मुद्दे पे एक राय आपकी भी मोटी मोटी कुछ बनी होगी. तो ये राय कुछ बनी हो तो आप हमें बताइए, नहीं बनी हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे. इसमें जहां तक आपने बात रखी है कि जो एरिया कम होता जा रहा है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार जो है जमीन इंडस्ट्री के लिए और तमाम जो बिल्डर परियोजनाओं के लिए जो अधिग्रहित करती जा रही है. खासकर मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर के बारे में जानकारी दूं. यहाँ पर हमारे यहाँ बहुफसली जमीन है और सिंचाई से मतलब पानी से सिंचित होता है, लेकिन यहाँ पर जो जमीन है उसको आप समझ सकते हैं कि पहले ये हमने काफी कोशिश करी, आंदोलन भी किया कि 50% तो कम से कम हमारे लिए छोड़ा भविष्य के लिए, लेकिन उन्होंने स्थिति ये कर दी है. हमारे यहाँ लगभग 360 गांवों की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर है, जो जिसको नोएडा बोलते हैं, गाजियाबाद है, और इधर हरियाणा जो पड़ जाता है, इसमें फरीदाबाद, पलवल, उधर अगर हम दिल्ली की दूसरी तरफ देखें सोनीपत, और फिर वापस यूपी में बागपत. तो ये जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, यहाँ पर
ये स्थिति हो गई है कि किसानों के पास जमीन बिल्कुल ना के बराबर रह गई है और जो जमीन है उसको भी अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने अपने रडार पे लिया हुआ है। अगर किसान आंदोलन करते हैं कि भाई अन्न का संकट आएगा वो देश के बारे में सोचते हैं, तो बिल्कुल सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो कंक्रीट के महल बना करके, वो इंडस्ट्रीज खड़ा के जो यहाँ बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं या जो आवासीय बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं यहाँ पर, उनसे उसको विकास कहती है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट आने वाले समय में आने वाला है। जिस तरह से जो कृषि की भूमि कम होती जा रही है देश भर में, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है दिल्ली से लेके मुंबई तक, इसमें 1483 किलोमीटर लंबा है और काफी इसकी चौड़ाई है। इसमें लगभग 7 राज्यों की जमीन, 6 से 7 राज्यों की जमीन इसमें जा रही है। हम लोग सब लोग इसमें प्रभावित हैं और बीच बीच में आंदोलन करते रहे हैं। 2013 से विशेष रूप से हम इस मुद्दे पर को उठाते रहे हैं कि जो DDFCIL है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड, उसके अंतर्गत DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इसमें लगभग 17 राज्य प्रभावित हो रहे हैं। देश की 56% कृषि भूमि अधिग्रहण करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। तो क्या होगा भविष्य में? हमारे देश की सीमाएं अगर हम देखें तो हमारे देश में पूरे भूभाग में कितनी ऐसी जमीन है जो उपजाऊ है। उस जमीन के एक तो वो उपजाऊ भी पूरी नहीं है, कहीं बाढ़ की स्थिति वाला क्षेत्र है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है। तो जहाँ समतल भूमि है, खासकर यहाँ हम देखें पंजाब से लेकर के हरियाणा और दिल्ली एनसीआर, कुछ हमारे मध्य प्रदेश और यूपी का भाग है, तो यहाँ पर विशेष रूप से खासकर गुजरात की हमारी भूमि है। तो ये जो अच्छी फसल की भूमि है, इसको अधिग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। और उसके लिए अगर बहुत ही आवश्यकता है तो उसके लिए कोई परसेंटेज तय होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा, जबकि 2013 का जो अधिग्रहण कानून बना था उसमें ये व्यवस्था थी कि जो सिंचाई वाली जमीन है या बहुफसली जमीन है उसका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज बड़े स्केल पर, बहुत बड़े स्तर पर जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है और किसान आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कम से कम कानून का सम्मान करिए। आपने ही कहा है कि भाई बहुफसली जमीन नहीं अधिग्रहित की जाएगी, उसको चाहे वो PPP मॉडल के अंतर्गत आप ले रहे हैं या चाहे आप पब्लिक पर्पज के लिए, हाँ कहीं बात आती है, बहुत ही आवश्यकता है, वहां थोड़े रोड निकालना है या रेलवे लाइन का मामला है, वहां बना सकते हैं। लेकिन आप बिल्डर्स को दे रहे हैं, आप जो है सिटी बसाने की शहरीकरण के लिए तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो कम से कम ऐसी जमीन को बचाइए। और अब जहां तक ये भूभाग छोटे होते जा रहे हैं, जैसे आपने अभी स्केल बताया था कि 3000 वर्ग मीटर की स्थिति आ जाएगी और उससे भी कम होगी आगे आने वाले समय में, तो क्या होगा फिर? तो MSP से बिल्कुल क्लियर बात है कि MSP से काम चलने वाला नहीं है। अब तो हमें बिल्कुल भागीदारी ही मिलनी चाहिए किसानों को। कानून बिल्कुल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके बनना चाहिए, सभी की सहमति से बने। एक्सपर्ट जो लोग हैं कृषि क्षेत्र में उनके साथ राय लेकर बनाने चाहिए। अपनी मर्जी से सरकार के मंत्री, सरकार कोई किसी के कहने पे काम कर रही है, कहाँ से राय लेकर आ रही है, उसको विचार को कम से कम जनता के बीच में रखे, किसानों को समझाए। अगर वो हमारे यहाँ गन्ना बेल्ट है, मेरठ सहारनपुर का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, यहाँ काफी बड़े स्केल पर जिस तरह से महाराष्ट्र में गन्ने की खेती होती है, उसके बारे में कोई किसी तरह से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। उनके जो गन्ना वो वहां पर डालते हैं मिलों में, उसका पैसा ही नहीं मिलता है, उल्टा उस पर जो है कई साल का पैसा उनका फंसा पड़ा, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय हो गया है कि सरकार किसी कानून को बनाने में जो है किसी की सलाह नहीं ले रही है, किसी किसान की जो स्थिति को, मूलभूत सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रही है, उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कानून नहीं बना रही है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरह से हमारे अभी जिस तरह से अभी गुप्ता साहब, आपसे मेरा सीधा प्रश्न ये है कि ये जो आंदोलन हुआ, ये तीनों कायदे बने और उसके सामने आंदोलन हुआ, आंदोलन अपनी चरम सीमा पे जा रहा है, क्या मानते आप, ये क्या ये पूरा जो हादसा है इसको रोक सकते थे सरकार? जी, ये बिल्कुल जो प्रजातंत्र में हमें बोलिए आप बोलिए। नहीं सुनील जी, ये प्रश्न गुप्ता साहब के लिए है कि ये जो आज डेडलॉक खड़ा हुआ है, तो इसको क्या रोका जा सकता था? कहीं चूक हुई है, क्या हुआ है और अब आगे क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये मान लेना चाहिए कि जो सबके साथ बैठ के चर्चा करके
अर्थशास्त्रियों को भी बुला लीजिए, किसान के नेताओं को भी बुला लीजिए, जो वैज्ञानिक हैं उनको भी बुला लीजिए, और सबके साथ बैठकर अगर हम चर्चा करते कि भाई खेती में क्या क्या चुनौतियां हैं और किस तरह से उन चुनौतियों को हमें हल करना है, तो निश्चय ही एक अच्छा कानून भी बनता और किसी को भी ऐसी हालत में नहीं आना पड़ता कि भाई दिल्ली जाए बिना हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। आंदोलन तो कई महीने चल रहा था और उनका कहना यही था कि जब तक हम दिल्ली नहीं आए तब तक हमारे साथ बातचीत में कोई ज़्यादा पहल नहीं की गई, और पिछली बार जब आए तो ज़्यादा बात नहीं की गई। तो शायद उनको ऐसा लग रहा है, और ये भावना किसी के मन में भी ना आए कि भाई दिल्ली जाए बिना हमारी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि प्रजातंत्र में तो जहाँ कहीं भी लोगों का संतोष हो वहीं पर हमको सुन लेना चाहिए उनकी बात को, वहीं पर उनको दिल्ली क्यों आना चाहिए। तो ये तो हम अवॉइड कर सकते थे, लेकिन एक बात अब ये है कि इस समय जो आंदोलन है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में थोड़ा सा नरमी दोनों तरफ से दिखानी पड़ेगी। किसान नेताओं को भी शायद ये समझना होगा कि भाई जो संशोधन चाहिए हमको कानून में वो कर लिया जाए। जैसे उन्होंने, सरकार ने कहा कि भाई अगर हम बाहर खरीदेंगे तो वहाँ पर भी उनके ऊपर रेगुलेशन होगी, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उनको टैक्स देने पड़ेंगे। तो मतलब कई हद तक मंडियाँ, चाहे वो सरकार जो APMC के अंदर हों या प्राइवेट हों, उनके अंदर एक पैरिटी लाने की कोशिश कर रही है, बराबरी लाने की कोशिश सरकार कर रही है, जो कि एक विषय है ध्यान रखने का। दूसरी बात है कि जो कार्टेलाइजेशन की बात है, जो मैंने पहले कही, मैं उसको दोहराऊंगा कि अगर बड़े बड़े उद्योगपति आपस में मिलकर और तय कर सकते हैं कि किसानों को क्या देना है नहीं देना, तो मंडी में भी होता है ये काम। बिल्कुल सही बात है ये कही कि अगर 90% लोगों को तो दाम में MSP का मिल ही नहीं रहा, आज भी पंजाब में भी नहीं मिल रहा है, हरियाणा में भी नहीं मिल रहा है। तो फिर अगर मंडियों के होने के बावजूद इतने सारे लोगों को MSP नहीं मिल रहा है, तो कारण वो तो APMC के साथ में ही है, तो APMC के बावजूद है, तो APMC में सुधार की गुंजाइश है। कई राज्यों में तो यहाँ तक है कि अगर आपको जिस मंडी से लिंक किया गया है आपको वहीं जाके बेचना पड़ता था। अब सरकार ने कोशिश की कि पूरा देश एक मंडी बन जाए। ये जो बात कही सुनील जी ने कि किसान कैसे जाएगा, तो किसान को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आएंगे उनके पास खरीदने के लिए, आटा बनाने वाले आएंगे, उनके पास जो ब्रेड बनाने वाले हैं वो आएंगे, बिस्कुट बनाने वाले आएंगे। ये कंपनियां सीधा किसानों से खरीदने के लिए कोशिश करेगी, और किसानों को भी प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर अपना काम करना पड़ेगा। अब जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, अब कॉपरेटिव्स, अगर जैसे अंगूर जैसे कॉपरेटिव अगर गुजरात में सफल हो सकते हैं, पंजाब में, हरियाणा में कॉपरेटिव ज़्यादा, सहकारी समितियाँ ज़्यादा सफल नहीं हैं, तो प्रोड्यूसर कंपनी बनाइए, प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर स्केल आ जाएगा। तो जो अभी बात कही कि स्केल कैसे आएगा, स्केल आएगा मिल के काम करने से। अब हम अकेले अकेले छोटे छोटे किसानों को नहीं छोड़ सकते बाजार की व्यवस्था के ऊपर, उनको सहयोग साथ में लाएंगे तो वो निश्चय ही उनकी जो बार्गेनिंग पावर है, उनकी जो बाजार से जिद्दोजहद करने की भावना है, जो उनके पास क्षमता है कि अच्छे दाम लिए जाएं, वो क्षमता उनको मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी मानना चाहिए कि गेहूं और चावल का फसल चक्र बदलना पड़ेगा, हमें दालें और तिलहन फसलों को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कमी है हमारे पौष्टिकता की, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारा फसल चक्र बदले, और इसके अंदर किसानों को भी सहयोग करना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा पानी की खपत वहाँ पर जो हो रही है, जितना पानी का स्तर नीचे जा रहा है उसके ऊपर हम ध्यान देना होगा। सबसे पहले पंजाब में और हरियाणा में जिंक की कमी आई थी, आज हम सबको जिंक की कमी है। क्यों? कि हम जो अनाज खाते हैं उसमें जिंक ज़्यादा है नहीं, जिंक की मात्रा कम। ऐसे जो सूक्ष्म तत्व हैं वो बहुत सारे हमने ज़मीन से निकाल लिए, डाले नहीं ज़्यादा। तो हमारी ज़मीनें जो हैं वो बैंक का खाता है, आप पैसा निकालते रहिए और जमा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो इसलिए बहुत सारे सवाल हैं किसानों की खेती में टिकाऊपन लाने के लिए। सिर्फ एक कीमत की बात नहीं है, और भी समस्याएं हैं। मैंने बताया मूल्य वृद्धि की बात लानी चाहिए थी कि भाई किसानों को लोन मिले, और छोटे छोटे उद्योग लगाएं मिलकर, उसकी बात नहीं हो रही है, उसकी बात करनी चाहिए हमको। तो किसानों की मांगों को भी थोड़ा विस्तार देने की आवश्यकता है, दूरगामी विकास के माध्यम से। जो युवा वर्ग है किसानों का, वो अब खेती नहीं करना चाह रहा है, तो उनको आप मूल्य वृद्धि में लगाइए, उनको छोटे छोटे एंटरप्राइज लगाइए, उनके उद्योग लगाइए। अभी स्टार्टअप पॉलिसी जो है वो शहरों तक रह गई है। किसानों के बच्चों को क्यों नहीं मौका मिल रहा है अपने उद्योग लगाने का, अपनी छोटी छोटी कंपनियां बनाने का। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कुछ पहल करे किसानों के लिए कि सरकार इस मौके का फायदा उठाकर, तो सीधा किसानों के बच्चों के दिल में जाएगी बात कि भाई ये तो बात अच्छी कह रही है सरकार, चलो इसका फायदा उठाते हैं। तो कुछ नरमी दोनों तरफ से आए, कुछ थोड़ा विस्तार दोनों तरफ से आए, बात का आयाम थोड़ा बढ़ाया जाए। और ज़रूरी नहीं कि जो किसान मांग रहे हैं उसी की चर्चा करें, जो नहीं मांग रहे, जिसकी ज़रूरत है उनको, उसको भी बात की जाए। पराली वाली जो बात आई है उसमें सब दिल्ली में एक प्रयोग हुआ कि 30 दिन के अंदर वो खाद बन गई, ऐसे डिकम्पोजर का स्प्रे किया।
तो पंजाब हरियाणा की सरकार भी करे इस काम को, ताकि पराली की अच्छी खाद बन सके। और दूसरी बात है कि उसके लिए उद्योग लगे, ताकि उनसे अच्छी क्रॉकरी और बहुत सारी चीजें बन रही हैं उसके ऊपर ध्यान जा सके। तो इस समस्याओं के लिए खाली किसानों पर जोर डाल देना, उनके ऊपर जुर्माना करना ठीक नहीं है। हमें उनको सहयोग करना चाहिए, उनके साथ में उनको बताना भी चाहिए कि क्या क्या और मुद्दे हैं खेती के टिकाऊपन के, जिसको ध्यान ज़्यादा नहीं दिया गया है पिछले सालों में, उसको आगे लाना है। और कोशिश करनी है कि जहाँ पर चावल की जगह पर और कोई फसल लानी है मानसून के सीज़न में, वो लाई जाए। गेहूं के अंदर अगर सरसों को भी साथ में उगाना है, पहले उगाते थे किसान, वहाँ नरमा भी लगाते थे किसान, गेहूं और सरसों मिला के लगाते थे, चना भी लगाते थे, वो सब बंद हो गया। तो उसको थोड़ा सा जमीन के स्वास्थ्य को भी हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो किसान का स्वास्थ्य और किसान की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो। जी जी। गुप्ता साहब, चूंकि समय की कमी है, हेमंत भाई आपको तो मैं बाईपास कर रहा हूँ, आप तो हमें मुझे क्षमा करेंगे। जैसे सरकार एपीएमसी को बाईपास कर रही है। नहीं, मैं आपको बाईपास कर रहा हूँ अभी फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि मुझे सुनील जी से पूछना है कि ये आखिर आपका लास्ट वर्ड, इसका हल क्या निकलेगा, आप क्या चाहते हैं, क्या हल निकलेगा, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आगे चल के क्या हमें ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति, इस तरह का कन्फ्रंटेशन पैदा ना हो। इसमें जहां तक जो इस आंदोलन के संबंध में सरकार का जो रवैया है, उन्होंने कानून बनाने में बहुत जल्दबाजी की। इस तरह से ये जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, पहले इसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। और खासकर आगे के लिए तो मैं यही सुझाव दूंगा कि इसमें अभी जो स्थिति बनी हुई है, इसको पूरी गहराई के साथ उसको समझे सरकार, और जितने भी किसान नेता आंदोलन में हैं, जितने भी किसान संगठन, सामाजिक संगठन भी जो सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ वार्ताओं का दौर जिस तरह से चला है, इसको और बड़े स्तर पर, अगर कहीं स्टेट में आंदोलन हो रहा तो वहाँ के स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी उनकी बात को सुने। और जहाँ केंद्र में बात है, दिल्ली के आसपास की बात है, वहां तो केंद्र सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री वगैरह करेंगे ही। बात यह है कि उस बाकी जो कृषि मंत्री के अलावा भी अगर मान लिया सरकार एक्सपर्ट्स जो कानून बनाने में जिनकी सहभागिता रही है, उनके माध्यम से उनको भी बीच में ले, जैसे भी जो वार्ता होती है। और इसका समाधान तो तभी निकल पाएगा जब सभी की सहमति बनेगी और किसान की बात, किसान को भविष्य नजर आ जाएगा अपना, हाँ वास्तव में हमारे बारे में, जिस तरह से अभी हमारे पूर्व वक्ता साहब ने कहा है कि जो मतलब जो योजना बनाने की जो तरीका है, जो इस तरह से जो स्टेक होल्डर्स को नहीं शामिल किया गया, तो ये चीजें, ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। और इस परिस्थिति को संभालने के लिए या भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए जरूरी है कि एक अच्छा कानून बनाया जाए और उनको पूरा मूल्य किसान को मिल सके। ऐसी मतलब कहीं वो लॉस वाली, क्योंकि आज स्थिति ये हो गई है कि उनका ध्यान जो किसान का या किसान के बच्चों का भविष्य उनको नजर नहीं आ रहा है खेती में। अगर उनके बच्चे जिनको शिक्षा देनी है या उनके लिए अन्य खर्चे हैं या उनकी शादी विवाह, तमाम भविष्य। धन्यवाद सुनील जी, मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ। ये बातें अभी तो मैं मानता हूँ शुरू हुई है, हम आपके साथ बातें करते रहेंगे, मगर आज की वार्ता का दर्शक जो सार निकला है, दर्शक मित्रों, આજની વાતનો આખી સાર એ છે કે કાયદો બનાવતી વખતે જો વિચાર વિમર્શ કરવામાં આવ્યો હોત તો કદાચ આ પરિસ્થિતિ ના ઊભી થઈ હોત। લોકશાહી વ્યવસ્થામાં કાયદો એ માર્ગદર્શન માટે છે, કાયદો માલિક ન બની શકે એ વાત ખ્યાલમાં રાખવી જોઈએ। અંગ્રેજીમાં કહ્યું છે કે એ લો ઇઝ ફોર ધ ગાઈડન્સ, ઇટ કેનોટ બીકમ ધ માસ્ટર। એટલે એ વાત ક્યાંક ને ક્યાંક અખરી છે, એમાં કોઈ શંકા નથી। ખેડૂતોની માગણીઓમાંથી પણ હજુ તો ઘણું બધું આગળ વધશે, કારણ કે આવનાર સમયમાં ખેતી ઓછી ને ઓછી પોષણક્ષમ બનતી જવાની છે, અને એ જો ખેડૂત ખેતીથી દૂર ગયો તો આપણા માટે અન્ન સુરક્ષામાં મોટું ગાબડું પડે અને આ દેશની વસ્તીને જીવાડવાનું મુશ્કેલ બની જાય સ્થિતિ છે। અને છેલ્લે મહાભારતમાં શ્રીકૃષ્ણ વિસ્તિકાર તરીકે ગયા હતા, 5 ગાબડા આપવાની વાત કરી, એ પણ ન મળ્યા, ત્યારે મહાભારત થયું। માટે કોઈ પણ ગૂંચવણ હોય
કોઈ પણ વિવાદ હોય ત્યારે થોડીક બાંધછોડની નીતિ પણ જરૂરી બને છે. આશા રાખીએ સરકાર આ બધા જ મુદ્દાઓ પર જે રીતે શરૂઆત એણે કરી છે કામ કરશે અને ટૂંક સમયમાં જ આપણા કિસાનોના જે પ્રશ્નો છે, એમની જે અપેક્ષાઓ છે એ પૂરી થાય અને એમનું આંદોલન સમાપ્ત થઈ અને વળી પાછા સૌના કામે લાગે એવી આપણે અપેક્ષા રાખીએ. અટકીએ આજે અહીંથી. મળીશું વળી પાછા એક નવો વિષય, નવી પેનલ સાથે. તમે ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝન સાથે જોડાયા માટે આભાર. શુભરાત્રી, શબ ખેર.